ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮ से ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ हैगा सारा प्रोटेस्ट करने का। हाँ जी भैया, क्या नाम क्या अपना? गुरदीप जी। क्या समस्या क्या आ रही सर यहाँ पे? सर उरे समान पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना नहीं है, उरे पढ़ाई नहीं वधी, उरे साडी प्रोफेसर नहीं पूरे है, उरे साडे JRs नहीं है सानू पढ़ाने वास्ते, उरे इलैक्ट्रिसिटी दी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उरे असीं चंगी तरह पढ़ नहीं पा रहे इन्नी गर्मी च। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਰੇ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ? ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? सर वो बोलते हैं कि चेयरमैन से बात करो। सर सानू मतलब यही सुनने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਬਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? ਵੀ ਆਰ नॉट ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਵੀ ਆਰ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ से मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ MCI ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬੈਚ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ NMC ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, BFGHS ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। LTs ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਡ 20,000 ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੋਂ 60,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 60,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 60,000 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ 60,000 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ LTs ਇੱਕ ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ AC ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ LT ਨੇ, 150 ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੀ LT ਹੈ, ਪਰ AC ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ इजाज़त, धन्यवाद। नहीं, सहूलतें मैं जानना चाहूँगी किन सहूलतों के बारे में वो बात करते हैं। तो उन्होंने पानी की सहूलत बताई है, फिर पंखे के लिए बोला, उन्होंने AC फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ पे आए हैं, प्रैक्टिस के लिए, उन्हें इंस्ट्रूमेंट कोई भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं बिजली की या पानी की दिक्कत है, पानी की यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर हमारे पम्प्स लगे हुए हैं, बोर पम्प्स यहाँ लगे हुए हैं। लिफ्टिंग हम जब चाहें उस टाइम हम कर सकते हैं। कहीं पे पानी ख़त्म हो जाता है जिस हॉस्टल में, हमें जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसी टाइम तुरंत हमारा सुपरवाइज़र जाके मोटर्स हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हैं करके ऑन और पानी चढ़ा जाता है। अब आपको पता है जब इतनी यूटिलाइजेशन किसी चीज़ की लागत होती है तो भरते हुए भी टाइम लगता है। बड़े टैंक्स हैं, भरते हुए टाइम लगा, तो इतना तो कॉर्पोरेट बच्चों को करना ही पड़ेगा। इतना इवन घर में अगर पानी ख़त्म हो तो जब तक टैंकी भरती है या कुछ, उसके लिए वेट तो थोड़ा करना ही पड़ता है, चाहे 15 मिनट चाहे 20 मिनट। अगर उसको भी इशू बनाया जाए तो इट इज़ नो इशू। मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आज की नहीं है या कल की नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बच्चों को आ रही है और बच्चे आज बोले हैं नहीं पानी के। देखिए, मैं भी कैंपस में ही रहती हूँ, ठीक है ना, जहाँ से उनको वाटर सप्लाई आता है मेरे को भी वहीं से आता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि अब हॉस्टल्स में आपको पता है लागत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि पानी यूज़ ज़्यादा होता है, तो इससे जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उस टाइम, अब कई बच्चे हैं, हम भी देखते हैं बच्चों से भी गलतियां होती हैं, कॉलेज आ जाते हैं, पीछे नलके खुले छोड़ाते हैं, कमरे लॉक कराते हैं, पानी चढ़ता है ऊपर पर टैंक भर नहीं पाता है, पानी नीचे से बह जाता है। सो देयर आर सर्टन कॉजेज़। इसलिए एक इशू ये सोच के कि पानी ही नहीं है ये नहीं कह सकते। बड़ी बार हम बच्चों को बुला के कहते हैं अपने रूम का ताला खोलिए ताकि नल का बंद करना है। वहाँ मैनेजर है हमारी लेडीज़ गर्ल्स हॉस्टल में। सिमिलरली बॉयज़ में इतनी हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बॉयज़ आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो बंद करके आते हैं। गर्ल्स बाथरूम में हॉस्टल में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी की बात की जा रही है कि एफिलिएशन इसकी जो कैंसिल हो चुकी है, नहीं, एफिलिएशन एज सच कैंसिल नहीं हो चुकी है। जो बैच इस साल आना था हमारा 23-24 का बैच, उसके लिए अभी यूनिवर्सिटी ने हमें सिर्फ लिखा है कि उसकी एफिलिएशन नहीं है। बाकी ऐसी बात नहीं है जो बैच, और उसमें उसी ऑर्डर में अगर आप वो ऑर्डर पढ़ें, हम उसकी कॉपी भी आपको दे सकते हैं। उसी में बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है एफिलिएशन फॉर द बैचेस विच आर ऑलरेडी विद अस। जो हमारे पास हैं बैचेस 21, 22, 22, 23 के, इनकी एफिलिएशन जो है कंटिन्यू होगी, ऐसी कोई इशू नहीं है। हमने ये बात बच्चों को भी बड़ी बार समझा दी है कि ये आपकी एफिलिएशन नहीं कैंसिल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही फैसिलिटीज़ की बात, आपको पता है जैसे घरों में भी फ्लक्चुएशन होती है, घरों में भी इन्वर्टर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, जब ऑन होते हैं लाइट जाती है। जैसे आपको पता है पंजाब में इस टाइम प्रॉब्लम लाइट की है ना, तो हमारे जनरेटर्स बैकअप हैं, काफ़ी बड़े बैकअप हैं, सारा लोड उस पर जाता है हमारा। ठीक है, हम रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा, अगर हम भी एसी चला रहे हैं एसी बंद कर दें, अगर कूलर कोई चला रहा है कूलर बंद कर दे, तो फ़ैन पे ही सिर्फ चले। बाकी यहाँ ओपन स्पेस बड़ी है, अगर थोड़ा सा आप भी देख रहे हैं प्लेजेंट मौसम में बच्चे बाहर आ सकते हैं और घूमते हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है, दे आर परमिटेड टिल 9:30। तो बाकी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ होती है तो ऐसी कोई बात नहीं, हम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, देखेंगे वो क्या गाइड कर सकते हैं हमें इसके लिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई भी अगर कंप्लेन होती है तो उन्हें अप्रोच नहीं करने दी जाती, उन्हें रोक दिया जाता है। कौन कहा उन्होंने वहाँ पे डाउन टाइम हाँ जी, हाँ जी। अब उनको ये भी डर है कि अगर इस बार प्रोटेस्ट हुआ है तो इसके बाद बच्चों को दोबारा से तंग भी किया जा सकता है कि आप लोग ऐसे कैसे निकल के आए, उस बारे में क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी और आपको इस बात का मेरे साथ सहमत होना चाहिए कि डिसिप्लिन एक इंस्टीट्यूट में जो है बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे अगर हमें कहते हैं या आप कह रहे हैं कि रोका जाता है, कौन रोकेगा उनको? आई एम अवेलेबल हेयर ऑल द टाइम, मैं कैंपस में रहती हूँ, CO साहब यहाँ होते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हम में से 2 पर्सन तो हमेशा अवेलेबल होते ही होते हैं। मैं कैंपस में रहती हूँ, अगर रात को भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, और जब भी कभी हुई है रात को, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे, आप बच्चों को भी पूछ सकते हैं। आई इमीडिएटली रश टू द प्लेस। कभी बच्चे हैं जी कैंपस में टोटल? सारे बच्चे कैंपस में ही रहते हैं। 108 एक बैच के हैं, 150 एक बैच के हैं। 209? हाँ जी, 209? हाँ जी। 258 बच्चों ने आज जो है प्रोटेस्ट किया। नहीं, इन बच्चों में से किया होता तो नहीं, समझ आती है बात। सेकंड ईयर के बच्चे अपने क्लासों में हैं। हम क्या माने कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं सारा कुछ? ये मेरे को लगता है ये मोटिवेटेड है, पीछे कोई है जो इनको मोटिवेट कर रहा है और जिसके लिए ये कर रहे हैं। सुबह इन्होंने क्लास नहीं अटेंड की थी, हम गए थे, CO साहब गए थे, मैं गई थी, हम मिले, हमने इनसे बातचीत की है, पहले सेकेंड ईयर के साथ की, फर्स्ट ईयर के साथ की। उनके चंद मुद्दे थे जिनको उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा फ्लक्चुएशन की बात की, पानी की बात की। हमने उनको कहा कि 2 डेज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी को डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, देखेंगे वो हमें क्या गाइड करते हैं कि क्यों वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो वील डिस्कस इट आउट। बाकी जितने उनके कूलर्स वगैरह हैं सारे हमने आज चेक करवा के सारे अप टू द मार्क करे। देखिए, घर में भी कोई गैजेट होती है उसमें प्रॉब्लम तो आती है, चाहे AC हो, चाहे कूलर हो, चाहे नलका हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, खराब तो रहती है। मैनेजमेंट जो है कितनी श्योर है कि जो एफिलिएशन को लेकर जो बात कही जा रही है, हाँ जी, वो जल्दी जो है वो ठीक हो जाएगी या फिर एफिलिएशन जो मिल जाए? नहीं, एफिलिएशन तो जो बैच आना है उसके लिए इस साल के लिए कहा है ना। तो वी आर अप्रोचिंग द कंसर्न्ड एजेंसीज, हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। द मैटर हैज़ बिन पुट, नाउ इट इज़ एट देयर एंड। बट जो बच्चे हमारे पास हैं उनका कोई इशू नहीं है, दैट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी हैज़ रिटन कि उनकी एफिलिएशन जो है वो कंटिन्यू है।